Yes, and then now we start unit number 4th. And unit number 4th is electromagnetic induction and alternating current. Unit 4 is electromagnetic induction and alternating current. In short, you can say it is EMI and AC. EMI and AC. Earlier we have read about the electric current and magnetic field around it. In first unit we have read the electrostatics in which we study related to the charges at rest. When this charge in the form of electrons start flowing through a conductor, then it generates current, rate of flow of charge through a conductor. And there is a magnetic field, or there is a space around the current carrying conductor in which the magnetic effect is observed, which is called magnetic field. It means magnetic field is generated by the current, or current is generating magnetic field. So electric current is the source of magnetic field, we can say. And since physics is based on the symmetry, so we can say that when a current produces magnetic field, or magnetic field is generated due to the electric current, it reverse should also be true. पूरी जो फिजिक्स है वो नेचर से रिलेटेड है और नेचर सिमेट्री पर बेस्ड है. सिमेट्री ये कहती है अगर ए से बी प्रोसेस पॉसिबल है तो बी से प्रोसेस ए भी होना चाहिए. अब आप ए से बी का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, तो अब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट को भी जनरेट किया जा सकता है. और ये जो फिनोमिनन है, इस फिनोमिनन को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और वील डिफाइन वन मोर टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स. By changing magnetic flux, the electric current or electricity can be induced, or EMF can be developed, and this phenomenon is called electromagnetic induction. So it is the phenomenon of producing induced EMF or EMF. अभी बताएंगे induced का क्या मतलब है. EMF by changing the magnetic flux, and magnetic flux is changed by changing the magnetic field also, and this is called electromagnetic induction. In this unit we are going to study this electromagnetic induction, and very first term of electromagnetic induction is magnetic flux. What is magnetic flux? Earlier we have read electric flux, and now we are going to study magnetic flux. What is magnetic flux? जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टडी करेंगे तो देखिए, जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, और इट मेजर्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट surface or through a surface. So it measures magnetic flux, measures magnetic field lines through a surface. कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस में से पास होती है उसको मेजर करता है मैग्नेटिक फ्लक्स. और कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ किस का प्रोडक्ट? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and area of the surface through which it passes, normally. It is very similar to the electric flux, except there is one change. Electric field is replaced by the magnetic field. Electric field lines are replaced by the magnetic field lines. Suppose this is a surface and these are the magnetic field lines passing through this. These are magnetic field lines. A is the area of this surface. Then we can say it is like this. Then it is like this. If B is the magnetic field, A is the area, it is represented by phi. So phi is equal to B into A. And if magnetic field is not perpendicular to the surface, then what will happen? If B makes angle theta with area vector, then it is defined as phi b cos theta into A, that is B A cos theta, or B dot A. We can define B dot A. कैसे हो जाएगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए, देखिए ये वाला केस ले लें. If this magnetic field is passing like this, the magnetic field is passing like this, it makes angle theta with it.
So what is the direction of area? Is normal to the surface, perpendicular to the surface. What is the direction of magnetic field? Making angle theta with it. So this is direction of magnetic field, this is direction of area. Take the component of B along this direction, along the theta. So this component will become B cos theta, and if it is B cos theta, then by definition multiply the normal component of the magnetic field to the surface, B cos theta into A, then you will get BA cos theta B dot A. B the magnetic field, A the area vector, or you can define it as the dot product of magnetic field and area vector through which this magnetic field is passing. This is the formula of magnetic flux. और अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लेंगे जिसमें आप ये तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म दोनों के लिए फॉर्मूला बनाना हो, then what can we do? We'll take a small element whose area is ds, so this one is ds. For small element, अगर इसमें से कोई आप मैग्नेटिक फ्लक्स देते हैं, for small element of area ds phi will become d phi will become, that is b dot ds, and phi total flux will be b dot ds. This is the formula of magnetic flux, and over a closed surface then you will have a circle over it. So magnetic flux over a closed surface is given by b dot ds. Integral of b dot ds, this is the formula of magnetic flux. ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया, ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया, और इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप यहाँ से ds को लेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, विल डिवाइड द एंटायर सरफेस इनटू स्मॉल एरिया, और फिर हम सबको इंटीग्रेट करेंगे, देन यू विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड. और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास हो रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है. और ये जो थीटा एंगल है b डॉट ds, जब हम ds की डायरेक्शन लेंगे और b का कंपोनेंट लेंगे, तो b cos थीटा इनटू ds, एंड इट विल बिकम इंटीग्रल b डॉट ds, एंड थ्रू अ क्लोज सरफेस इंटीग्रल b डॉट dx. व्हाट इज SI यूनिट? इट इज a scalar quantity. It is a scalar quantity. And what is SI unit? SI unit is Tesla meter square. V is Tesla, area is meter square, which is called Weber. And symbol of Weber is WB. You can write it WB. So Weber is the unit of magnetic flux, or Tesla meter square is the unit of magnetic flux. ये ले सकते हैं. Tesla की वैल्यू रख देंगे तो दूसरी यूनिट बन जाएगी. So this is all about the magnetic flux. So we have understood what is magnetic flux, which measures the number of magnetic field lines through any surface. चलिए, magnetic flux के बाद में अब हम इसमें कुछ experiments करते हैं. Let us perform few experiments. और वो experiments जो हैं, these experiments were done by scientists Faraday and Henry. तो इनको Faraday और Henry के experiment से भी जाना जाता है. More popular name is Faraday. So generally we say it is the Faraday's experiments. Faraday's experiments. What are Faraday's experiments? Or sometimes Faraday and Henry. Experiments of Faraday and Henry. Faraday and Henry. सबके एक्सपेरिमेंट है. देखिए क्या एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और बहुत ही एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनन है. इन एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करेंगे. एक्सपेरिमेंट नंबर 1. In this experiment we have taken a coil like this, and we have connected it across a galvanometer, और a galvanometer is connected across two ends of a coil. ठीक है, किसी भी कॉइल से हमने क्या कनेक्ट कर दिया है? गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया है. लेट्स हैव अ मैग्नेट. देयर इज अ मैग्नेट, and this magnet is having north pole and this pole is south pole. If this north pole of the magnet is moving towards the coil, then this galvanometer gives a sudden deflection. The observation of the experiment is, first, what is experiment? We have a galvanometer. As you know, the galvanometer is a device which is used to detect the presence of current in a circuit. Take a coil, connect this galvanometer across the ends of a coil, so the circuit will become closed and there is no source of EMF in it. There is no battery, there is no cell. कोई भी हम डायरेक्ट एनर्जी का सोर्स इसमें यूज नहीं ले रहे हैं. अगर हम ये एनर्जी का सोर्स लेंगे, कोई सेल कनेक्ट कर दीजिए, करंट विल फ्लो, गैल्वेनोमीटर विल गिव डिफ्लेक्शन. दिस थिंग वी हैव रेड अर्लियर, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके नेबर में, इसके पास गैल्वेनोमीटर जो कनेक्टेड कॉइल है, इसके आसपास हमने एक मैग्नेट लिया और मैग्नेट को हमने मूव कराया, और मैग्नेट को हम टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कराया. व्हेन
the magnet is moving either towards or away from the coil, this galvanometer gives a sudden deflection. It means there is a certain current, there is a certain amount of current in the circuit. तो इस सर्किट के अंदर कहीं से करंट डेवलप हो गया. करंट किसकी वजह से आता है? ईएमएफ की वजह से आता है. भाई आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा है सेल्स की वजह से. अगर हम इसमें सेल लगा दें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का होता है, उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. इसमें कोई सेल नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है. ओनली यू आर मूविंग द मैग्नेट आइदर टुवर्ड्स द कॉइल और यू आर मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल. एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑब्जर्व्ड बाय फैराडे, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच the galvanometer gives sudden deflection. And if galvanometer gives sudden deflection, means there is current in the circuit. And if there is a current in the circuit, it means there is a EMF, source of EMF is there, but no direct source of EMF. So you can say by moving the magnet either towards or away from the coil, EMF is developed in this coil. And this EMF developed is known as induced EMF. इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं. एंड ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, सिंस द सर्किट इज क्लोज्ड, so the current will also flow through the galvanometer. That's why the current so flowing through the galvanometer is called induced current. अब देखिए दो टर्म हमने बताई. अब करंट अलग अलग है. पहले आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? which is generated due to the flow of the electrons. अब हम पढ़ रहे हैं इसमें इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस करंट, इंड्यूस का मीनिंग बताएंगे. जो प्रोड्यूस और इंड्यूस में थोड़ा सा डिफरेंस है. ये अगर इसमें डायरेक्ट हम सेल लगाते हैं तो प्रोड्यूस हो जाएगा. इंड्यूस का मतलब ये हुआ जिसमें हम कोई भी कॉइल में डायरेक्ट चेंज नहीं करते हैं. वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंज डायरेक्टली इन द कॉइल. दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंड्यूस्ड. ठीक है. आप क्लास में कोई बच्चा शोर कर रहा है और टीचर ने खड़ा करके उसको डांट दिया है, और उसके जो बराबर वाले बच्चे हैं, साइड वाले बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं कहा, तो उनमें टेरर इंड्यूस हो गया. इसका मतलब वो भी अलर्ट हो गए हैं. तो यानी कि उन्हें कुछ नहीं कहते हैं. जो भी चेंज करेंगे नेबर में करेंगे, और उसका इफेक्ट यहां कॉइल में दिखाई दे जाएगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इंड्यूस्ड. सो वी कैन से ईएमएफ इज डेवलप्ड, और जो इसमें ईएमएफ डेवलप हुआ है, द ईएमएफ इज जनरेटेड, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ. और द करंट सो डेवलप्ड इन द सर्किट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. अब देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है. ऑब्जर्वेशन ये है, अगर नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आता है तो डिफ्लेक्शन एक साइड में आता है. अगर नॉर्थ पोल अवे जाता है, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज आल्सो रिवर्स्ड. So when north pole is approaching the coil, the deflection occurs in one direction. When north pole of the magnet goes away, then again deflection occurs in the opposite direction. And same phenomenon is occurring when south pole is either moving or away or towards the coil. South pole coil की तरफ को आता है तो एक साइड में डिफ्लेक्शन. साउथ पोल दूर जाता है तब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जाती है. और एक और तीसरी बात बताई, एक नेक्स्ट थिंग और बताया फैराडे ने. एक और देखा, फैराडे ने देखा कि फास्टर इज द मोशन ऑफ द मैग्नेट, मोर डिफ्लेक्शन occurs in the galvanometer. जितना तेजी से आप मैग्नेट को मूव कराते हैं, अगर मैग्नेट को बहुत स्लोली मूव कराते हैं तो डिफ्लेक्शन बहुत कम आता है या डिफ्लेक्शन आता ही नहीं है. तो जितना आप तेजी से फास्ट मूव कराएंगे उतना ही इसमें डिफ्लेक्शन आएगा. और इसमें ये कहते हैं कि फैराडे ने काफी टाइम तक एक्सपेरिमेंट किया, और जब 8 या 10 सालों तक फैराडे में कोई सक्सेस उन्हें नहीं मिली, तो अल्टीमेटली ही हैज थ्रोन द मैग्नेट थ्रू दिस. उसने जब गुस्से में आगे कोई चीज फेंक देते हैं कि भाई मुझे इतना टाइम हो गया लैब में काम करते हुए. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी है उसके बाद जब पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने ऐसा भी किया था. उन्होंने कि भाई जब फेंक दिया है तो उसका मतलब क्या हुआ, फास्टर द मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड देन ही गॉट द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप तेजी से, जितनी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, उतना ही इसमें करंट का डेवलपमेंट, करंट भी ज्यादा होगा. मोर डिफ्लेक्शन अकर्स इन द गैल्वेनोमीटर. ठीक है. अब ऐसा क्या हो गया मैग्नेट को मूव कराने से? एक तो हम देखिए 4-5 केस लेते हैं. फर्स्ट केस, नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग द कॉइल. सेकंड केस, नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल. थर्ड केस, व्हेन मैग्नेट इज जस्ट रिवर्स्ड. South pole is approaching the coil. South pole is going away from the coil. How many cases are there? 4. Magnet is at rest. Coil is either moving away or towards the north pole. 2 more cases. 6. Then magnet, the coil is moving away toward the south pole. 2 more cases are there. So there are 8 cases. So we can explain all these 8 cases in one word. और वो one word हो जाएगा whenever there is a relative motion. Relative motion means कोई भी इधर उधर जा सकता है. So whenever there is a relative motion between magnet and coil, the galvanometer shows sudden deflection. तो एक ऑब्जर्वेशन है ना, 8 ऑब्जर्वेशंस को हम एक में मर्ज कर रहे हैं. कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी? इसकी ऑब्जर्वेशंस पहले लिख रहे हैं. ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज whenever there is a relative motion. relative motion किसके बीच में? between magnet
coil, the galvanometer gives sudden deflection, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, when motion, the direction of motion is reversed, direction of motion is reversed, क्या रिजल्ट होता है? देन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो रिवर्स्ड। क्या मतलब हुआ? पहले डायरेक्शन इधर थी, डिफ्लेक्शन देखिए हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर में जीरो सेंटर पे होता है, गैल्वेनोमीटर में ये नीडल होती है, जीरो होता है, इधर भी स्केल बना होता है, इधर भी स्केल बना होता है। तो अगर जीरो है तो देखिए शुरू में ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, अगर एक साइड में लेके जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन एक साइड में आ रहा है, जब दूसरी साइड में लेके जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड। डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट को टुवर्ड्स न लाके मैग्नेट को किधर ले जाए? अवे ले जाए, ठीक है, वेदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन इज फास्टर इज द मोशन ऑफ मैग्नेट, more deflection occurs in galvanometer। तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर मिला आपका, केवल मोशन पे डिपेंड नहीं करता, मोशन का रेट क्या है, स्पीड कितनी है उसकी, उस पर भी डिपेंड करता है। और जितनी तेज स्पीड से मैग्नेट को या कॉइल को मूव कराते हैं उतना ही इसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन आता है। मोर डिफ्लेक्शन अकर्स इन द गैल्वेनोमीटर। सो दीज आर द थ्री ऑब्जर्वेशंस एंड फैराडे गॉट सक्सेस। फैराडे इसमें सफल हो गए। और कैसे फैराडे को सक्सेस मिली? उन्होंने कहा कि देखिए इस कॉइल में हमने ईएमएफ इंड्यूस कर दिया, डेवलप कर दिया विदाउट एनी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कोई भी विदाउट एनी सोर्स ऑफ ईएमएफ, विदाउट एनी सेल, विदाउट एनी बैटरी, ओनली चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया इससे? देखिए इससे ये हुआ, आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल जब जाता है तो किधर जाती है? अवे होती है। और साउथ पोल में क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी बहुत सारी, सो मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गए। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जाती हैं इसमें, ये आप समझ सकते हैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगी, आपस में मिलती रहेंगी। These are the magnetic field lines. So as the magnet north pole is approaching the coil, more number of field lines are passing through the coil, and more number of magnetic field lines passing through the coil, it means magnetic flux will change, magnetic flux will increase. So when it approaches the coil, the magnetic flux increases, and when goes away from the coil, magnetic flux decreases, because when it approaches the coil, magnetic field increases. जितना पास में होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा लाइंस इसमें से पास होंगी, more number of lines will pass through it. So by changing the magnetic flux, the EMF will be induced. तो इसका कारण भी बताया, कॉज बताया, रीजन बताया। क्या रीजन है इसका, क्या कॉज है इसका, एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेनेशन क्या एक्सप्लेनेशन है? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये कारण है। और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से है? ये चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है जैसे आप मूव कराते हैं, तो जैसे मैग्नेट को मूव कराएंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पास होता है जो कॉइल में से, वो चेंज होगा। और जब इसमें से ये जो कॉइल है अगर इसके मैग्नेट ये बहुत पास में आता है, देन मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू इट। और अगर ये थोड़ा दूर जाएगा तो कुछ लाइंस इधर उधर से निकल जाएंगी, तो लेस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू इट, एंड इट मींस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल चेंज, एंड व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज द EMF will induce. So Faraday has explained that on the basis of these experimental observation, the cause of the induced EMF is change of magnetic flux linked with the coil. तो अगर किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया जाए, अंडर दैट कंडीशन द EMF is developed in the coil, and when EMF is developed in the coil and the circuit is closed, then current will also be developed in the circuit, and this EMF developed is called induced EMF, and this current developed is called induced current. बताइए बात समझ आई कि नहीं? तो एक ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट हो गया। इस एक्सपेरिमेंट का हमने पहले कंस्ट्रक्शन बताया क्या एक्सपेरिमेंट है, फिर इसकी ऑब्जर्वेशंस ली। अब उन ऑब्जर्व्स को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया और उससे हमने कारण ढूंढ लिया कि किस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। चलिए अब दूसरे एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। कम टू सेकंड एक्सपेरिमेंट। ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ, अब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। फैराडे ने वन मोर एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड बाय फैराडे, एंड इन दैट एक्सपेरिमेंट व्हाट ही हैज डन, देखिए उस दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने।
दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने ये किया, यही कोई कॉइल है, वी हैव द सेम कॉइल, और इस कॉइल में अब हम जहां हमने मैग्नेट रखा था, अब उस मैग्नेट को हमने रिप्लेस कर दिया, और किससे रिप्लेस कर दिया? किसी दूसरे कॉइल से। और ये जो दूसरी कॉइल है, यहां हमने एक सेल लिया और इस तरह से रियोस्टेट लगाया, और एक इसमें हमने की लगा दिया। एंड एज वी नो व्हेन की इज क्लोज द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन इन दिस कॉइल। इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा, और जब इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पास होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल आल्सो पास, आइदर यू कैन ड्रॉ ऑन दैट साइड और यू कैन ड्रॉ ऑन दैट साइड, डजंट मैटर, कहीं भी आप किसी में भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लीजिए, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, डायग्राम बोर्ड के सेंटर में आ जाएगा। चलिए यहां से बता देते हैं, ये डायरेक्शन होगी। So when this key is closed, then we know that the current is flowing in this coil in this direction. ये आप जानते हैं, और जब इधर से करंट फ्लो करता है तो आप जानते हैं इधर कौन सा पोल डेवलप होगा? नॉर्थ पोल। और इधर कौन सा पोल? देखिए कौन से वाला पोल बनेगा, सॉरी क्लॉकवाइज बनेगा डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज में कौन सा पोल बन गया? साउथ पोल बन गया है। और इधर कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा, एंड द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। और आप जानते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पास होती हैं? ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास। बोलो, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है कि नहीं? This is the direction of pass of magnetic field lines. साउथ में एंटर करती हैं और नॉर्थ पोल से किधर जाती हैं? अब एमर्ज आउट होती है। What is observation in this experiment? When there is a change of current in this coil, then deflection occurs in this galvanometer. Again, deflection occurs in this galvanometer. And whenever the direction of current is reversed, the direction of deflection is also reversed. तो देखिए क्या होता है, अगर इसमें करंट आप फ्लो कराते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन आता है। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इंक्रीजेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीजेस। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डिक्रीजेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन आल्सो डिक्रीजेस। As the direction of current is reversed, the direction of deflection is also reversed. It means this deflection is controlled by this current, and this current is flowing in this coil. Suppose this is a primary coil, and suppose this is secondary coil, और this secondary coil is neighboring coil. कौन सी coil है? Neighboring coil है, ये neighboring coil है। So अगर आप प्राइमरी कॉइल में कोई भी करंट चेंज कराते हैं तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आता है सेकेंडरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल में कहीं आपने कोई सेल नहीं लगाया, कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है, ओनली वी आर मेकिंग एनी चेंज इन द प्राइमरी कॉइल एंड रिजल्ट इज ऑब्जर्व्ड इन द नेबरिंग कॉइल। And which kind of result is observed? The deflection is observed in the galvanometer. It means the current is flowing in this circuit. And this deflection is controlled by this current, by the primary current. So you can say this deflection occurs due to this current. And because this deflection shows there is a induced current in this circuit, and induced current can take place due to the induced EMF. So again, EMF is induced in this circuit. EMF will be developed, and this EMF developed is called induced EMF, and this current so developed is called induced current. तो ये जो EMF इसमें आया, इसको भी हमने induced EMF कहा, और ये जो करंट आया इसको हमने induced करंट कहा। अच्छा, अगर सर्किट ओपन होगा तो क्या इसमें EMF इंड्यूस नहीं होगा? EMF इंड्यूस फिर भी होगा। अगर सर्किट क्लोज होगा तो सर्किट क्लोज होने से करंट फ्लो करने लगेगा, लेकिन EMF तो इंड्यूस होगा। जैसे आपके पास सेल है, तो अगर सेल को सर्किट में लगाते हैं तो करंट फ्लो करता है। अगर सर्किट ऑफ होता है, स्विच ऑफ होता है, तो करंट फ्लो नहीं करता है। अगर करंट फ्लो नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सेल के अंदर EMF नहीं है, सेल के पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है दोनों टर्मिनल के क्रॉस। दोनों टर्मिनल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, EMF है सेल का। अब इसकी वजह से करंट तभी फ्लो करेगा जब सर्किट क्लोज होगा। अब इसका भी कारण ढूंढिए। पहले तो इसके ऑब्जर्वेशंस बताओ क्या क्या है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? पहली ऑब्जर्वेशन ये है, व्हेन देयर इज चेंज ऑफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, द डिफ्लेक्शन अकर्स इन द किसमें? In the secondary coil. So when there is change of magnetic, so if there is a change in current in primary coil, the deflection occurs in galvanometer in secondary coil और neighboring coil। पहली ऑब्जर्वेशन हो गया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। एक तो ये बता देते हैं, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इंक्रीजेस, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन होगी। क्या हो गया? अगर आई क्या करता है इसमें? इंक्रीज करता है। करंट क्या करे? इंक्रीज। देन डिफ्लेक्शन भी क्या करेगा? डिफ्लेक्शन विल आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा।
It means this deflection in the galvanometer is due to the current in the primary coil. इसकी जान तो यहाँ पर है, यहाँ से चेंज करा और इसमें से कंट्रोल करो करंट को, इसकी वजह से आ रहा है. और तीसरा एक और बताया, when direction of current is reversed, when direction of current is reversed, then the direction of deflection is also reversed. ये थर्ड ऑब्जर्वेशन आ गई. On the basis of these observations, again Faraday explained this phenomenon, why it happens. ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ. देखिए इसमें भी वही कारण है. As the current goes on increasing, if it is a solenoid then B is equal to mu naught n I. If it is a coil then B is equal to mu naught I upon 2A. This is the magnetic field. अगर कोई coil है n number of turns है तो ये हो जाएगा, solenoid है तो ये हो जाएगा. अगर इसमें I बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल है, इसके एक्सिस के पैरेलल होती हैं, कोयल में भी और सोलेनॉइड में भी. एंड दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द सेकेंडरी कोयल. And these number of magnetic field lines passing through the secondary coil changes, then magnetic flux linked with this coil will also change, and again EMF is developed in the coil, and due to which the current will flow through the coil. So again this current is due to the change in magnetic field and due to the change in magnetic flux, because this magnetic field is passing through the coil, that's why it is converted into magnetic flux. तो again the same cause. क्या explanation दिया फैराडे ने? एक्सप्लेनेशन क्या एक्सप्लेनेशन है? इट इज ड्यू टू, किसकी वजह से? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल. कोयल से लिंक या एसोसिएटेड भी कह सकते हैं, और इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? एसोसिएटेड विद द कोयल. सो व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का बताइए? phi इक्वल टू BA cos थीटा. इफ यू आर चेंजिंग B, the magnetic flux will also change. और B कैसे चेंज होगा? करंट चेंज कर दीजिए. देखो I के चेंज करने से B चेंज हो जाएगा, सोलेनॉइड है. I के चेंज होने से B चेंज हो जाएगा, कॉइल है. दोनों के केस में कॉइल भी ले सकते हैं आप. लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आप इसी को एक कॉइल में कन्वर्ट कर दीजिए. यही सर्किट डायग्राम है, और यहाँ से आप बहुत सारे टर्न लेकर के एक जगह ऐसे बना दीजिए कॉइल बना के, तब भी वही कंडीशन आएगी. सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, EMF is developed in the coil, and this EMF so developed is called induced EMF, and this current flowing through the circuit, if it is closed, is called induced current, and this phenomenon is called electromagnetic induction. Now we are in a position to define electromagnetic induction on the basis of the experimental observations and explanation given by Faraday. We can define electromagnetic induction in the way that, कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को? EMI, इट इज द फिनोमिनन ऑफ कौन सा फिनोमिनन हो जाएगा? ऑफ प्रोड्यूसिंग EMF एंड करंट इन ए कॉइल. बल्कि ऐसे कर दीजिए, EMF इन अ कॉइल बाय चेंजिंग magnetic flux linked with it, and the EMF induced or developed is called, क्या कहेंगे? Induced EMF. And if the circuit is closed, circuit कैसा है? Closed. The current produced or developed is called induced current, and power so developed is called induced power. तो अब हमें समझ आया. now we are in a position to define electromagnetic induction, we are in a position to define induced EMF, we are in a position to define induced current. So what is induced EMF, what is induced current, what is induced power? Induced का मतलब क्या हुआ? we are not making any direct change in the coil, even then the EMF is developed. So without any direct source of energy in the coil, we have produced the EMF, we have produced the current, so does it the violation of conservation of energy?
According to conservation of energy, the energy can never be created, can neither be created nor be destroyed. But here it seems that the energy is created in this circuit. We'll explain it. There is no violation of conservation of energy. We'll further explain it why there is no violation of conservation of energy. From where this current has been developed, from where this electric energy has been developed, वो हम explain करेंगे कहाँ से आएगी, वो भी इसमें कारण ढूंढेंगे. लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना निकल के आया कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को चेंज कराने, इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स. तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा के इलेक्ट्रिक करंट को भी जनरेट किया जा सकता है. तो दोनों प्रोसेस हो गए. पहले डायरेक्ट प्रोसेस आपने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और उसका जो अपोजिट डायरेक्शन का जो प्रोसेस होगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो प्रोडक्शन इंडक्शन में मीनिंग समझ आ गए. प्रोडक्शन तो यह है कि इसमें तो करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्टली फ्लो कर रहा है, तो प्रोड्यूस कह सकते हैं बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ. इसमें इंड्यूस कहेंगे बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ ईएमएफ. व्हाटएवर चेंजेस वी आर डूइंग दैट आर डन ओनली इन द नेबरिंग कॉइल. सो वी आर मेकिंग changes in the primary coil and result is obtained in the secondary coil or in the neighboring coil. So these are the Faraday's experiments and observations and explanation, and on the basis of these experimental observations we have defined the electromagnetic induction. अभी हम ये दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, अभी केवल यही पार्ट डिस्कस करना था. अभी हमें ये समझ आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फैराडे लॉ क्या है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है, इंड्यूस्ड करंट की डेफिनेशन क्या है, एंड ऑल दी डेफिनेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय फैराडे एंड हेनरी. तो देखिए हमने पहले भी बताया था फिजिक्स किस तरह से पढ़ी जाती है. फिजिक्स में पहले कोई साइंटिस्ट इमेजिन करता है, उससे थ्योरी से जनरेट करता है, उसमें एनालिटिकल फॉर्मूले या रिजल्ट बनाता है, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली बाद में प्रूव कर देते हैं. एक तरीका है. दूसरा तरीका है कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से कोई रिजल्ट आता है. एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था एक तो न्यूटन ने किया था कि न्यूटन में एप्पल था, ऊपर से गिर गया और उससे न्यूटन्स लॉ बन गया. यहाँ फैराडे ने कर दिया. जब फैराडे सफल नहीं हुआ, मैग्नेट लिया, उठा कर दूर फेंक दिया ऐसे, और जब मैग्नेट फेंक दिया ऐसे तो जब कॉइल के पास से मैग्नेट तेजी से निकला तो इसमें डिफ्लेक्शन आ गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि फैराडे जब पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो स्लो मोशन से मूव करा रहे थे, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता था वो इतना कम था, इतनी क्वांटिटी कम थी कि इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आता था. और जैसे ही मोशन फास्ट हुआ, इट मींस नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स but also it depends on the rate of change of the magnetic flux, because we have stated that the faster is the motion of the magnet, more deflection occurs in the galvanometer. So दोनों पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज भी होना और कम टाइम में भी होना. जैसे आज के साथ बच्चों के ऊपर डबल चैलेंज है, दोनों तरह के चैलेंज हैं. एग्जाम में बैठते हैं कॉम्पिटिशन में, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन लेस टाइम. ठीक है, टाइम का भी ध्यान रखना है. जो बच्चा कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा, सॉल्व करेगा, वो आगे जाएगा. तो आपको नॉट ओनली यू हैव टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स बट आल्सो वी हैव टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स रैपिडली, देन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. सबको समझ आ गया होगा. ये अच्छा टॉपिक था और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर.